Good morning, students. And let's continue with the topic of haloalkanes and haloarenes. And what are we going to do today? We are going to complete the topic of preparation of haloarenes, and also we are going to complete the physical property of haloalkanes and haloarenes. Okay. So let us start. As you can see, the first topic itself is written, which I have already written on the board. That is, it cannot be prepared by phenols. Sir, what cannot be prepared by phenols? We are talking right now about preparation of haloarenes. What are haloarenes? Benzene, और बेंजीन के ऊपर में क्या लगा होगा? Cl, Br, F, I, anything at all. Any of the halogen group, which is represented by the symbol X. They are saying that haloarenes cannot be directly prepared from phenols. अब phenols क्या होते हैं? याद है हम लोगों ने कल पहला रिएक्शन जब हम लोगों ने हेलोएल्केन्स पढ़ा था तो हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था फ्रॉम द वर्ड व्हाट? फ्रॉम द पार्ट ऑफ alcohols. This time also we are going to use alcohols but in the benzene form, and this is known as what? Phenol. PHENOL. Okay. Today we are going to learn a lot of words like phenol, phenyl, toluene or toluene. We are also going to read words like sulfurous chloride, okay, or sulfuryl chloride. We are also going to read the words like nitric acid and nitrous acid. Okay. So this is phenol. जब भी मैं ये ऐसे बनाता हूँ बेंजीन सर्कल, तो रिमेंबर वो एक्चुअली में इसका मतलब यही होता है, alternate double bonds. That's a resonating structure. Now let's see. So they have written on the board, I have written on the board, that is it cannot be prepared by phenols. But sir, वहाँ पर तो आपने अल्कोहल से बना दिया था, डायरेक्टली आपने क्लोरीन डाला एंड देन रिएक्शन किया एंड देन बन गया. यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? प्लीज अंडरस्टैंड, वहाँ पर Cl, F, Br, I डायरेक्टली OH को रिप्लेस कर रहे थे एंड फॉर्म कर रहे थे. इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पर फेनॉल था, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं. डबल बॉन्ड्स OH ग्रुप को इतनी इजीली बाहर ही नहीं जाने देते, so they don't allow the word substitution to happen in phenols, and that's the reason why the OH group does not go out, and because of that the Cl or Br or I cannot come in. This is the reason why we cannot prepare phenols, okay, or we cannot prepare haloarenes directly from phenols. Why? Because there is this partial double bond character or the resonance, and due to which it becomes very difficult for the OH group to leave the benzene ring. First preparation का method देखते हैं, and that is from arenes. Arenes. Now arenes में double bonds होते हैं, of course 3 double bonds होंगे. So कौन सा वाला method से आप कर रहे होगे? By electrophilic substitution method. Electrophilic. अब यहाँ पर आती है 2 वर्ड्स की बात, सो मैं दोबारा से अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 11th का कुछ खास उतना नहीं आता है. सी सिंपल ट्रिक्स. फाइल मतलब लव, ओके, फाइल मतलब लव. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन लविंग. इलेक्ट्रॉन को कौन लव करता है? इलेक्ट्रॉन को लव करेगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज. सो जितने भी पॉजिटिव वाले ग्रुप्स आ जाएंगे, लाइक CH3 वाला पार्ट आ जाएगा, या जितने भी पॉजिटिव ग्रुप्स होंगे, ओके, लाइक Na पॉजिटिव, सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल्स. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियस को लव करने वाला. न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव को कौन लव करेगा? नेगेटिव लव करेगा. सो न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन से हो जाएंगे? आपके सारे हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन. सो न्यूक्लियस को लव करने वाला कौन होगा? नेगेटिव चार्ज. ओके. नाउ दे हैव यूज्ड अ वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड. नाउ लेट अस से बेंजीन प्लस Cl2, ओके. तो बेंजीन प्लस Cl2. अब यहाँ पर वो क्या रहा है? यहाँ पर ऑलरेडी बेंजीन था मेरे पास में, एक H which is what? Electrophile. Why? Because it loves a positive charge.
So it is going to go outside and Cl is going to take the place of that part. And that's the reason why this is known as electrophilic substitution. So आप यदि देखोगे बेंजीन रिंग ने क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को क्विक ऑफ किया, वो हाइड्रोजन जो बाहर गया उसने एक Cl के साथ में कंबाइन किया एंड फॉर्म HCl और बना क्या, क्लोरोबेंजीन. But remember, very important, this kind of reactions happens only in darker environment. तो आप देखोगे यहाँ पर डार्क लिखा हुआ है, यहाँ पर सनलाइट मत लिख देना, completely different compound बनता है. Okay. This also happens in the presence of FeCl3 and HCl के presence में होते हैं ये reactions. आम तौर पे आप FeCl3 रख देते हो. So remember that benzene plus Cl2, और यदि आपने FeCl3 रखा होगा तो क्या बन जाएगा, chlorobenzene. So what is the name of this compound? Chlorobenzene plus HCl. सर मुझे तो ब्रोमीन बनाना है, नो प्रॉब्लम, बेंजीन प्लस Br2 एंड इट विल गिव यू आयरन. आप चाहो तो आयरन का जो छोटे छोटे बाय द वे वेस्ट आयरन होता है आप उसको भी डाल सकते हो, आयरन पाउडर को भी डाल सकते हो. सो Fe और FeBr3 अगेन डार्क रिएक्शन and it will give you what, bromobenzene plus HBr. What is HBr? Hydrogen bromide. What is HCl? Hydrogen chloride. Let's move ahead. मैंने यहाँ पर एक अलग से पॉइंट डाल करके रखा हुआ है, फ्लोरीन्स कैनॉट बी अटैच्ड. गाइज बिलीव मी, यदि आप केवल ये लेक्चर्स भी देख रहे हो अच्छे ढंग से, यू वुड बी एबल टू गेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल. हर बार वही रिपीटेड क्वेश्चंस आता है. Now they'll ask you why fluorines cannot be prepared directly, from arenes. So you will write, since fluorine has got huge affinity for hydrogen and fluorine does not release hydrogen so well, and that's the reason why fluorine cannot be directly prepared. There are only indirect methods. जैसे यदि आपको कल याद होगा तो कल हम लोगों ने हेलो एल्केन्स में एक रिएक्शन किया था which was named as Swartz reaction, right? SWART, Swartz reaction. Swartz reaction में आपने क्या किया था, AgF, right? And that particular F combined with that Br to form AgBr. तो हर जगह पर F के साथ में indirect reactions होते हैं, direct reactions नहीं होते हैं. Now there is this compound, guys, very important. फिर से please ध्यान रखना. This is benzene plus dichlorine in the presence of FeCl3 or dark, and it will give you chlorobenzene plus HCl. Again, benzene plus dibromine in the presence of iron or FeBr3, again dark reaction or dark conditions, and it will give you bromobenzene plus hydrogen bromide. If I say this particular compound, guys, learn कर लेना please, यदि 11th का base strong नहीं है तो. This is known as toluene or toluene, TOULENE, toluene or toluene. So remember, जब भी कभी बेंजीन के ऊपर में there is this single CH3, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्यों, यदि यहाँ पर होगा तो आप यहाँ बना लो, तो भी उसको हम toluene ही बोलेंगे. So remember that this particular compound is named as toluene or toluene. So इन्होंने लिखा है जब भी कभी आप बेंजीन toluene को या toluene को यदि आपने अगेन Cl2 किया, मतलब यदि एक्सेस है आपके पास में क्लोरीन की क्वांटिटी ज्यादा है और आप तब भी रिएक्शन करवा रहे हो, यदि CH3 पहले से है, मतलब बेंजीन नहीं है वहां टाउलिन है, इस केस में ये जो CH3 है, दिस इज नोन एज एल्काइल और मिथाइल ग्रुप बोलते हैं इसको. मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. सो रिमेंबर दैट ये क्या करेगा, it will direct this to this position, okay, and the meta position. So remember that जब भी कभी यहाँ पर पहले से एक CH3 ग्रुप है, that means if it is a toluene, then toluene plus Cl2 will give you ortho, right? So ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, याद करो, कल ही बताया था 1 and 2 is known as ortho and 1 and 3 is known as meta, okay? So it is ortho meta directing groups. So ये वाला कंडीशन आ जाएगा आपके पास, राइट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आता है. द वर्ड रिएक्शन विद आयोडीन इज स्लो और इट शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड.
नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। प्लीज रिमेंबर गाइस, रिएक्शन विद आयोडीन इज वेरी स्लो। तो मैंने यहाँ पर आपको क्लोरीन का बता दिया था, ब्रोमीन का बता दिया था, फ्लोरीन का भी बता दिया था, बट देन कम्स आयोडीन। आयोडीन की जो रिएक्शन होती है दैट इज वेरी स्लो, एंड प्लस आयोडीन ऑक्सीडाइज भी कर जाता है। दैट्स द रीजन व्हाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, व्हिच विल नॉट लेट दिस हैपन। व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नाइट्रिक एसिड, HNO3। ध्यान रखना, HNO3 is known as nitric acid while HNO2 is known as nitrous acid. Nitric, nitrous. Okay, let's move ahead. If this toluene, now जैसे मैंने बताया था, यदि आपने कंडीशन चेंज कर दिया और डार्क के बजाय यदि आपने सनलाइट दे दिया और आपने कोई भी हेलोजन कैरियर नहीं दिया, हेलोजन कैरियर मतलब HCl, HBr कुछ भी नहीं दिया, आपने बस टॉलुइन लिया और Cl2 डाल दिया, अब क्या होगा? और यदि सनलाइट दिया डायरेक्टली हिट किया, इन दिस वे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये CH3 एक हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, एक Cl उसकी जगह पर लगेगा, दैट मीन्स इट विल फॉर्म CH2Cl एंड देन बेंजीन रिंग प्लस HCl। अंडरस्टैंड, जब भी सनलाइट दोगे तो डायरेक्ट CH इस वाले साइड के ऊपर में कनेक्ट कर देता है, जहां पर भी ये डबल बॉन्डेड वाला पार्ट होगा वहीं पे कनेक्ट हो जाएगा। एंड दिस कंपाउंड, जब भी कभी कोई भी ग्रुप डायरेक्टली इससे नहीं कनेक्टेड है, किसी कार्बन के साथ में कनेक्टेड है, देन दैट कंपाउंड इज नोन एज फिनाइल, PHENYL। फिनॉल नहीं, फिनॉल में अल्कोहल होता है, फिनाइल के अंदर देयर हैज टू बी द CH2। ओके, सो अब इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्लोरोफिनाइल, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन हटा है और यहां पर कुछ कनेक्ट हुआ है, क्लोरोफिनाइल मीथेन। ओके, प्लस HCl बाहर। लेट्स मूव अहेड। यदि इसी क्लोरोफिनाइल मीथेन को दोबारा से मैंने यदि Cl2 से रिएक्ट किया तो क्या हो जाएगा? वंस अगेन एक और हाइड्रोजन जाएगा और यहां पर ये बन जाएगा CH, Cl2 प्लस HCl। ये बन गया CH, Cl2 प्लस HCl। अब इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे डाइक्लोरोफिनाइल। सो लेट्स राइट डाइक्लोरोफिनाइल। डाइक्लोरो क्यों? क्योंकि दो क्लोरीन है। डाइक्लोरोफिनाइल एंड देन वन और दैट इज मीथेन। अब आपको लगा नहीं मेरे को तो अभी भी चालू रखना है, तो आपने दोबारा से Cl2 किया। अब की बार क्या बनेगा? वो जो एक हाइड्रोजन बचा था वो भी गायब। अब यहां पर आ जाएगा CCl3। दिस विल बी नोन एज ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन। ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन। सो रिमेंबर गाइस, अभी तक कौन कौन से रिएक्शंस करें? आपने पहले डायरेक्टली किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रॉम एरीन्स। आपने डायरेक्टली क्लोरिनेट किया, Cl2 डाला या Br2 डाला और वो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन टाइप का बन गया था। फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बाद में आपने देखा कि आयोडीन के लिए भी यू विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एसिड, व्हिच इज फॉर्मूला इज HNO3। अब आते हैं आगे वाले पार्ट में। टाउलिन के साथ में यदि आपने, और ये सारे रिएक्शंस किसमें थे? डार्क रिएक्शंस, डार्क कंडीशंस में होते हैं। यदि आपने सनलाइट दिया और यहाँ पर आपने FeBr या आपका FeCl3 कुछ भी नहीं दिया, आपने डायरेक्टली हीट किया, तो ये जो Cl है ये एक हाइड्रोजन को हटाएगा और उसी की जगह पर जाके कनेक्ट हो जाएगा। सो ये वाला रिएक्शन ये हो गया। अब आते हैं अगले वाले पार्ट पे। सी देयर इज दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इन विच ब्रांचिंग साउंड में आएगा आपको। सो देयर इज दिस CH2 CH3 CH2 CH3। जैसे पहले आपके पास में था से टाउलिन, तो यहां पर आपके पास में क्या है? दैट इज द इथाइल ग्रुप, राइट? सो इथाइल बेंजीन, करेक्ट। नाउ लेट्स सी। सो आपके पास में है यहां पर CH2 CH3 कनेक्टेड टू दिस बेंजीन। अब आपने जब Cl2 कनेक्ट करोगे तो इस Cl को लगाओगे कहां? यहां पर या यहां पर? ऑलवेज रिमेंबर, जिस भी जगह से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा ये वाला Cl हमेशा वहां लगेगा। तो इसका मतलब है CH2, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक H यहाँ से हटेगा, Cl यहाँ पर आएगा। सो दिस विल बिकम बेंजीन रिंग
CHCl dash CH3 and then again HCl बाहर. So see this CHCl CH3. इसको क्या बोलोगे? 1 chloro 1 where is this chloro gone? हाँ 1 chloro 1 phenyl. 1 phenyl का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन गायब है जहां से ये फेनाइल ग्रुप कनेक्टेड है. 1 chloro 1 phenyl ethane. 1 chloro 1 phenyl ethane. ओके तो इसके हिसाब से यदि आप इसकी यदि आप करोगे तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो? यू कैन से दिस दैट इट विल बी 1 what? 1 phenyl मीथेन और इथेन भी बोल सकते हो. इट्स बेटर. नाउ सो ये आ चुका है 1 chloro 1 phenyl ethane. तो आप यहाँ पर भी बोल सकते हो दैट इज 1 phenyl ethane. ओके नाउ लेट्स मूव अहेड. अब आते हैं अगले वाले रिएक्शन पे एंड विच इज नोन एज सल्फ्यूराइल क्लोराइड. सल्फ्यूराइल क्लोराइड क्या होता है? फॉर्मूला इज SO2 Cl2. ओके सो दिस विल बी SO2 Cl2. इसको कल हम लोगों ने एक और वर्ड पढ़ा था दैट वाज नोन एज थायोनाइल क्लोराइड. वो फॉर्मूला क्या था? SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड. और ये क्या है? सल्फ्यूराइल क्लोराइड. डिफरेंस है दोनों में. सो सल्फ्यूराइल क्लोराइड एट 475 केल्विन. H2O का मतलब सनलाइट में इसको रखा तो क्या बन जाएगा? CH2Cl. वही सेम कहानी. सनलाइट दोगे तो CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl. टेम्परेचर इज 475 केल्विन. Let's move ahead and let's come on to the most important reaction which has got a sure chance of coming in the board exam, and that's known as Sandmeyer's reaction. Now what is this particular Sandmeyer's reaction? जब भी कभी आप प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी एमीन को लेते हो, एक और नया वर्ड एमीन्स. So what is this amines? If there is this benzene ring, along with that there is this NH2, then this is known as amine. Okay. So Sandmeyer's reaction simply says that whenever you have got a primary or a secondary amine, then this amine will connect or will react with nitrous acid, HNO2. Please ध्यान रखना. This part will react with nitrous acid, HNO2 plus HCl. So HNO2 and HCl का combination आपने लिया and this is going to give you what? A reaction which is known as diazotization. Azo का मतलब होता है N2 वाला ग्रुप. तो diazotization. So again repeating, whenever a primary or a secondary amine is going to react with nitrous acid mixed with a HCl, then there is going to be an intermediate salt which is going to be made और उस salt को हम लोग बोलते हैं benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride. Why I am going so slow and again repeating? Because this is sheer of the highest importance topic. So HNO2 HCl. Now अब की बार यहाँ पर होगा क्या? बिकॉज सॉल्ट बना है तो इसका मतलब है यहाँ पर बेंजीन रिंग एज यूजुअल N, अगेन वन मोर N, दिस इज गोइंग टू फॉर्म N2. ध्यान रखना ये इंटरमीडिएट है. ओके सो N2 पॉजिटिव, इसका एक Cl यहाँ पर जाएगा एंड लास्ट में आपके पास में क्या बचेगा? 2 moles of H2O. This compound is known as benzene diazonium chloride and this is being used n number of times to form n number of compounds. And this reaction is known as what? Diazotization reaction. Let's move ahead. N2 positive, Cl negative in the presence of CuCl. अब जब आपने डायजोनियम क्लोराइड तो बना लिया बट हमें तो करना था प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन्स. कैसे करोगे? N2Cl को यदि आपने CuCl प्लस HCl के पेस्ट के अंदर यदि आपने डाला तो ये क्या बन जाएगा? इट विल गिव यू क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस विल बी लिबरेटेड आउट. व्हाट इज N2? नाइट्रोजन गैस. यदि आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuBr के साथ में रखा तो क्या बन जाएगा? Br मतलब ब्रोमोबेंजीन
प्लस N2 प्लस CuC। यहां पर भी क्या बन जाएगा, CuC। गॉट इट? सो रिमेंबर, जब भी कभी आप यहां पर कर रहे हो N2Cl मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्लस कॉपर ब्रोमाइड और कॉपर क्लोराइड एंड ऑफ कोर्स विद HCl used, then they are going to form bromobenzene or chlorobenzene plus N2 plus CuCl. Another reaction, very very important, which is known as Gattermann's reaction. So let's rub this side of the board first. So if you want to note it down, please do note it down. Okay. Now, suppose karo somebody asks you, what is this Gattermann's reaction? Very simple, guys. Gattermann reaction भी same ही होता है. The only difference is in the difference of reagent. तो यदि यहाँ पर है आपके पास में N2 positive and Cl negative, which is an intermediate मतलब जो reaction के बीच में बनता है, plus और अब की बार यदि आपने इसी को डायरेक्टली कॉपर के साथ में यदि आपने रिएक्ट करवा दिया तो यहाँ पर दोबारा से क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस HCl वाले पार्ट के साथ में भी रिएक्ट करवा दिया, so this will become what? This will again become, and this should become मतलब HCl आप लो लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो, and this will become Cl प्लस और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CuCl वाला पार्ट प्लस N2 अगेन बाहर। सो रिमेंबर, कॉपर पाउडर के साथ में भी सेम रिएक्शन होता है एंड बट जस्ट द नेम इज चेंजिंग। तो यहाँ पर आप प्लीज ध्यान रखना, डायजोटाइजेशन के अंदर आपने क्या लिया था, CuCl, जबकि यहाँ पर आप केवल कॉपर ले रहे हो, ओके, Cu। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर ओनली टेकिंग दिस कॉपर मेटल इन अ पाउडर फॉर्म, देन यू आर अगेन गोइंग टू गेट क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, बट देन दैट रिएक्शन विल बी नोन एज Gattermann's reaction। यदि आपने CuCl और CuBr लिया तो क्या हो जाएगा, तब ये बन जाएगा Sandmeyer's reaction। What is diazotization? This entire reaction is known as diazotization। Okay, now let's continue with, okay, so if you can see now we need to prepare the iodobenzene and the fluorobenzene। So what do we need to do? Benzene diazonium chloride, which is a salt, it's an intermediate, N2Cl plus Ki, potassium iodide। जब आप इसको आपने डाला in the warm conditions तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा iodobenzene plus N2 plus KCl, as usual the same mechanism। If now you want to prepare fluorine or fluorobenzene, अब फ्लोरीन को डायरेक्टली तो प्रिपेयर कर नहीं सकते, व्हाई, बिकॉज फ्लोरीन डज नॉट गेट्स डिटैच्ड टू हाइड्रोजन एज इजीली एज ऑल द अदर कंपाउंड्स डू। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक अ कंपाउंड नोन एज fluoroboric acid, fluoroboric acid, and the name of that particular part comes from HbF4, HbF4, B stands for boron, okay। So benzene diazonium chloride plus HbF4 जब ये कनेक्ट करेगा तो एक इंटरमीडिएट बनाएगा, विच इज N2 पॉजिटिव, Cl बाहर जाएगा एंड BF4 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में दोबारा से आपने इस रिएक्शन को, वो अपने आप होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज गोइंग टू देन गेट मेड विद व्हाट, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3, दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज फ्लोरोबोरिक एसिड and this compound is known as benzene diazonium fluoroborate, benzene diazonium fluoroborate, and this reaction is known as the Bals-Schiemann reaction, Bals-Schiemann reaction। तो यदि आप देखो तो अभी तक अपन लोगों ने कौन कौन से रिएक्शंस करे हुए हैं, we have already done, that is the Sandmeyer's reaction किया था, diazotization का वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद में हम लोगों ने Gattermann सिंथेसिस किया हुआ था, हमने कल ऑलरेडी ग्रूव्स प्रोसेस किया हुआ था, एंड आज हम लोगों ने देखा द Bals-Schiemann reaction also, okay। Now the next and the last named reaction comes and the name is Raschig process।
Now this Raschig process is nothing else but is the commercial method of preparation of benzene, or sorry, the haloarine. Now what do you mean by the word commercial process, sir? Commercial process के अंदर ये देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा yield या कितनी ज़्यादा क्वांटिटी मुझे मिलेगी, बिकॉज जितना ज़्यादा क्वांटिटी मेरा बाहर निकलेगा मैं उतना इजीली उसको सेल कर सकता हूँ. So benzene plus HCl, so benzene gas is passed through what? The hydrochloride gas, and then it's mixed with oxygen in the presence of CuCl2, which acts as a catalyst, and in the presence of 525 Kelvin, and you will get chlorobenzene plus H2O. And this process is known as Raschig process. So Raschig, Ball-Schiemann reaction, वहाँ पर अभी हम लोगों ने लिखा था Sandmeyer reaction, Gattermann's reaction, and so on and so forth. Let's move ahead. Okay. Now let's talk about the word physical properties. Before the word physical properties, please do remember that Rx bond, which is haloalkane, is always polar in nature, right? Because R is positive, X is negative. Right? Now this polarity will create actually a lot of things or process, and that will be dipole moments आना चालू हो जाएंगे. पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी उतनी बड़ी नहीं होने देंगे. नाउ लेट्स सी बॉन्ड लेंथ. कॉमन सेंस गाइस, बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड क्या पड़ेगा गाइस? ये ट्रेंड्स बहुत जरूरी है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है. बॉन्ड लेंथ, एज यू नो दैट फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, सो कार्बन एंड फ्लोरीन विल फॉर्म द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, देन कार्बन एंड क्लोरीन उससे बड़ा, देन कार्बन एंड ब्रोमीन उससे बड़ा, एंड कार्बन एंड आयोडीन सबसे बड़ा गाइस. डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस. सो CCl इज ग्रेटर देन CF. नाउ इस कंडीशन में ध्यान रखना, बिकॉज एक्चुअली द ionization enthalpy, okay, or sorry, the electron gain enthalpy, the electron gain enthalpy for chlorine would be the highest, and that's the reason why ज़्यादा induced charges CCl में होंगे as compared to CF के अंदर. तो CCl में ज़्यादा induced polarity होती है as compared to CF, इसीलिए CCl पहले आता है dipole moment में, CF, then comes CBr and then comes Ci. सब कुछ normally trend है, बट डाइपोल मोमेंट का मतलब किसमें? इसमें पोलैरिटी के अलावा लेंथ भी काम करते हैं. तो कार्बन एंड क्लोरीन के अंदर पोलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन एंड फ्लोरीन के अंदर. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. कॉमन सेंस गाइस, एज यू विल मूव फ्रॉम क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ध्यान रखना गाइस की बॉइलिंग पॉइंट तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं सबके, लेकिन गाइस मेल्टिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस आना चालू हो जाएगा. कैसे? बिकॉज गाइस क्लोरीन का of course melting point ज़्यादा होगा as compared to bromine as compared to iodine. So जैसे जैसे आप down the group जाते हो, the melting point would increase. Isomeric alkyl halides. Isomeric alkyl halides में इन्होंने लिखा है boiling point. Isomeric alkyl halides का मतलब क्या हुआ? Suppose करो मेरे पास में 4 कार्बन है like this. ये हो गया पहला, और इसी का मैं सेकंड ऐसे भी तो बना सकता हूँ. Isobutyl and N-butyl, करेक्ट. सो ध्यान रखना गाइस प्लीज, मतलब ये यहाँ डैश और यहाँ डैश लगा दिया. नाउ आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, ये दोनों के दोनों आइसोमर्स हैं. इन्होंने बोला गाइस जितना स्ट्रेट चेन होगा उसकी हमेशा क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन. व्हाई? बिकॉज मोर द ब्रांचिंग विल लीड टू मोर सरफेस एरिया. That means चीजें इजीली ब्रेक होना या मेल्ट होना चालू हो जाएंगी. So remember that straight chain compounds will always show the highest melting point as compared to the branch ones. Now for same halogens, यदि आपने मान लो एक ही हेलोजन रखा है Cl Cl Cl, बस केवल आप मॉलिक्यूलर चेन बढ़ाते जा रहे हो like this, CCl CCCl. In this case, please remember, as you will keep on, increasing the number of carbon atoms, and of course, guys, the molecular masses would increase. So what is this? So for same halogens, boiling point would increase with increase in molecular masses. So boiling point increase karega with increase in molecular masses. Next, haloalkanes have higher boiling point as compared to alkanes.
Haloalkanes will always have higher boiling point as compared to alkanes. Why? Because उनमें polarity ज़्यादा होगी. Alkanes में polarity होती नहीं है. They are non-polar compounds. While these will be having polarities. Haloalkanes are not, in spite of being polar, yet ये पानी के अंदर dissolve नहीं होते हैं. Guys, very important question. Haloalkanes are not soluble in water because they are unable to form the hydrogen bonding with hydrogen bonds present in water. So haloalkanes, in spite of being polar, cannot dissolve in water because they cannot form hydrogen bonds with water. Then I have already told you guys, iodine will always be greater as compared to bromine as compared to chlorine in the case of what? In the case of haloarenes. Haloarenes के अंदर भी सेम ही ऑर्डर चलेगा. आयोडीन जहाँ आएगा उसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो और मेटा. गाइस ये क्लास 11th का क्वेश्चन है एक्चुअली. इट्स लाइक दिस. यदि मैंने मान लो ये एक बेंजीन रिंग ले लिया और ये है इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये है इसका मेटा पोजीशन, एंड ये है इसका पैरा पोजीशन. विच वन डू यू थिंक इज मोर स्टेबल? कॉमन सेंस, द पैरा वन ऑपोजिट के अंदर है, दूर दूर है. दैट्स द रीजन व्हाई. So remember guys that para position will always have higher melting point because that is much more stable as compared to this and this. Correct? So this, by the way guys, completes our physical properties of haloalkanes and haloarenes today. Now what are we going to do tomorrow is we are going to read the chemical properties. तो कल आ जाएगा substitution, nucleophilic reaction, SN1, SN2, activation energy and isomerism. Okay. So I think कल तो शायद केवल SN1, SN2 में ही जाएगा. And once the chemical properties guys ends up, your topic actually ends up. So what have we done till now? We have done the basic introduction. We have done the nomenclature. We have done the preparation of haloalkanes and haloarenes. And tomorrow and the day after. So ideally means Saturday and Sunday. Sunday को खत्म हो जाएगा topic. Thank you guys so much. Keep smiling, enjoy and ciao. Bye.